کبھی کبھی انسان جسے اپنی خوشی سمجھ لیتا ہے وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھیں۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل اسکرول کر رہی تھی۔ وہ ایک سادہ مزاج، نرم دل اور دیندار لڑکی تھی۔ اس کی زندگی زیادہ تر گھر، کتابوں اور اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ عائشہ کو ہمیشہ سے سچی محبت پر یقین تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر کبھی اس کی زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ اللہ سے ڈرنے والا، عزت کرنے والا اور سچ بولنے والا ہوگا۔ اسی دوران ایک نوٹیفیکیشن آیا، ارحم نے آپ کی پوسٹ کو لائک کیا ہے۔ عائشہ نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر چند لمحوں بعد ایک میسج آیا، السلام علیکم، آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ عائشہ نے تھوڑا سوچا، پھر جواب دیا، وعلیکم السلام، شکریہ۔ بات بس اتنی سی تھی، مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اگلے چند دنوں میں ارحم کے میسیجز بڑھتے گئے۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتا، عائشہ کی تعریف کرتا، اس کے خیالات کی قدر کرتا اور اسے خاص محسوس کرواتا۔ آہستہ آہستہ عائشہ کو اس کی عادت ہونے لگی۔ ایک رات ارحم نے پوچھا، کیا تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ عائشہ نے جواب دینے سے پہلے لمحہ بھر سوچا، مگر دل نے عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہاں، اسی رات عائشہ کی ماں اس کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے عائشہ کو مسکراتے دیکھا تو پوچھا، بیٹی، آج کل تم بہت خوش لگتی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ عائشہ تھوڑا جھجکی، پھر سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے خاموشی سے سنا، پھر نرمی سے کہا، بیٹی، آن لائن دنیا میں ہر چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھتا ہے، احتیاط کرنا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا، مگر دل میں سوچا، ارحم مختلف ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن ارحم نے عائشہ کو اپنی کہانی سنائی، مشکلات، تنہائی اور ایک ایسے دل کی داستان جو محبت کا بھوکا تھا۔ عائشہ کو اس پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ وہ دونوں دیر رات تک باتیں کرنے لگے، خواب، وعدے، مستقبل، سب کچھ۔ مگر ایک چیز عجیب تھی، جب بھی عائشہ اس کی فیملی اور زندگی کے بارے میں تفصیل سے پوچھتی، ارحم بات بدل دیتا۔ ایک دن عائشہ کی دوست نے اس سے کہا، مجھے نہیں لگتا تم اسے اتنا جلدی ٹرسٹ کرو، لوگ بدل جاتے ہیں۔ عائشہ کو برا لگا، اسے لگا شاید دنیا کو سچی محبت پر یقین ہی نہیں۔ اس رات ارحم نے کہا، مجھے لگتا ہے تم ہی وہ لڑکی ہو جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے تو آسان کر دے۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ جس راستے پر وہ قدم رکھ رہی ہے وہاں محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا راز بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش رک گئی تھی، مگر عائشہ کی زندگی میں ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ ایسی کہانی جس میں محبت بھی تھی، دھوکہ بھی، اور ایک ایسا سبق جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان کو سچ بھی خواب لگنے لگتا ہے۔ عائشہ کی زندگی اب بدلنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھنا، رات سونے سے پہلے آخری میسج ارحم کو بھیجنا، یہ سب اس کی عادت بن چکا تھا۔ گھر والے سمجھتے تھے وہ پڑھائی میں مصروف ہے، مگر اس کا دل اب کسی اور دنیا میں جا چکا تھا۔ ارحم کی باتوں میں عجیب سا جادو تھا، وہ ہر روز نئے خواب باندھ دیتا، ایک خوبصورت گھر، محبت بھری زندگی اور ایک ایسا مستقبل جہاں دونوں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ ایک دن ارحم نے کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میرے لیے خاص ہو۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، دل میں عجیب سی خوشی جاگی۔ اس نے پہلی بار خود کو کسی کے لیے اہم محسوس کیا، مگر اسی خوشی کے درمیان کچھ سوال بھی تھے۔ کبھی ارحم گھنٹوں غائب ہو جاتا، کبھی اس کی باتوں میں تضاد ہوتا، کبھی وہ اپنے ماضی کے بارے میں عجیب سی خاموشی اختیار کر لیتا۔ عائشہ جب بھی پوچھتی، ارحم فوراً جذباتی ہو جاتا، مجھے اپنے ماضی کی باتیں یاد نہیں کرنی، تم بس مجھ پر یقین کرو۔ اور عائشہ ہر بار خاموش ہو جاتی۔ ایک شام عائشہ کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، محبت خوبصورت ہوتی ہے، مگر آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، امی، وہ مختلف ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے۔ ماں نے خاموشی سے اس کی پیشانی چومی،
मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। अगले दिन अरहम ने आयशा से कहा, काश मैं तुम्हें अभी मिल सकता, तुम्हें गिले लगाकर बताता कि तुम कितनी अहम हो। आयशा का दिल जोर से धड़का। इसने पहली बार किसी के लिए ऐसी शिद्दत महसूस की थी। मगर इसी दिन आयशा की दोस्त ज़ारा ने इसे एक स्क्रीनशॉट दिखाया। वो किसी लड़की की पोस्ट थी जिस पर अरहम ने वही जुमले लिखे थे जो वो आयशा को कहता था। आयशा के हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? इसने फौरन अरहम को मैसेज किया, ये लड़की कौन है? चंद लम्हों की खामोशी, फिर अरहम का जवाब आया, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैंने सोचा था तुम सबसे मुख्तलिफ हो। आयशा घबरा गई। इसे लगा शायद वाकई वो गलत सोच रही है। सॉरी, मैंने बस पूछा था। अरहम ने लंबी लंबी जज्बाती बातें शुरू कर दी, अपनी तन्हाई, अपने जख्म और दुनिया की बेवफाई का जिक्र। आखिरकार आयशा पिघल गई। मैं तुम पर यकीन करती हूं, मगर इस रात जब वो सोने लगी, इसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। ऐसा बोझ जो खुशी के बावजूद खत्म नहीं हो रहा था। वो बार बार सोचती रही, अगर वो सच्चा है तो मुझे डर क्यों लग रहा है? खिड़की से बाहर चांदनी फैल रही थी, मगर आयशा के दिल में अंधेरा सा छाने लगा था और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अंधेरा आने वाले दिनों में इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। झूठ कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बेचैनी, खौफ और हजारों सवाल भी ले आता है। आयशा की जिंदगी अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक वो जो घर वालों के सामने थी और एक वो जो मोबाइल स्क्रीन के पीछे अरहम के साथ चल रही थी। वो सुबह उठते ही इसका मैसेज पढ़ती, दिन भर उसकी आवाज जहन में गूंजती और रात को इसी के ख्वाब देखती। मगर अब कुछ बदल रहा था। अरहम पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो हर बात फौरन बताता, अब अक्सर सवालों से बचने लगा था। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके पूछा, तुम अपनी फैमिली के बारे में कभी तफसील से क्यों नहीं बताते? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अरहम ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान बार बार नहीं छेड़ता। आयशा फौरन नर्म पड़ गई। इसने सोचा शायद वो वाकई दुखों से गुजरा है। मगर इस दिन के बाद अरहम की कहानियां बदलने लगें। कभी वो कहता इसका बड़ा बिजनेस है, कभी कहता वो जॉब तलाश कर रहा है, कभी कहता वो दूसरे शहर में है और कभी किसी और जगह। आयशा के दिल में शक पैदा होने लगा, मगर वो हर बार खुद को समझा देती, नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। एक शाम आयशा की दोस्त ज़ारा ने इसे कहा, मैंने इसका प्रोफाइल देखा है, इसकी बातें मुझे ठीक नहीं लग रहे। आयशा को गुस्सा आया, तुम लोग हमेशा हर रिश्ते में बुराई क्यों ढूंढते हो? मगर इस रात आयशा ने खुद भी अरहम के पुराने पोस्टर्स देखे। कुछ चीजें वाकई अजीब थीं, तारीखें नहीं मिल रही थीं, तस्वीर मुख्तलिफ कहानियां सुना रही थीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अरहम को कॉल की, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच बताओ। अरहम की आवाज सख्त हो गई, तुम मुझ पर शक कर रही हो? आयशा ने नरमी से कहा, नहीं, बस समझना चाहती हूं। अरहम अचानक गुस्से में आ गया, मैंने सोचा था तुम सबसे मुख्तलिफ हो, मगर तुम भी बाकी लोगों जैसी निकली। आयशा के आंसू निकल आए, नहीं, मैं तुम पर यकीन करती हूं। अरहम ने लंबी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर मुझसे सवाल ना करो। ये जुमला आयशा के दिल में तीर की तरह लगा, मगर मोहब्बत ने इसे खामोश कर दिया। इस रात वो देर तक जागती रही। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचती रही, अगर मोहब्बत में सवाल पूछना गलत है तो फिर सच कहां से मिलेगा? खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था और आयशा के दिल में भी एक साया सा फैलने लगा था। इसे अंदाजा नहीं था कि यही पहला झूठ आने वाले बड़े धोखे की पहली सीढ़ी है। कुछ लोग मोहब्बत का नाम लेकर दिल नहीं जीतते, वो दिल को कमजोर बनाकर अपना फायदा उठाते हैं। आयशा ने खुद से वादा किया था कि वो अब अरहम से ज्यादा सवाल नहीं करेगी। इसे लगा शायद यही मोहब्बत की कीमत है, खामोशी, बर्दाश्त और अंधा यकीन। शुरू के चंद दिन सब ठीक रहा। अरहम दोबारा पहले जैसा प्यार जताने लगा। लंबे वॉइस नोटिस, रात भर बातें और मुस्तकबिल के ख्वाब। आयशा ने सुकून का सांस लिया। इसे लगा शायद इसके दिल के खदशात गलत थे। मगर एक रात अरहम की आवाज बदली हुई थी, परेशान, टूटी हुई
और अजीब सी उदासी से भरी, मैं बहुत मुश्किल में हूं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, बस तुम ही हो। आयशा घबरा गई। क्या हुआ? अरहम ने कहा कि इसका बिजनेस डूब गया है, कर्जा चढ़ गया है, और अगर फौरी पैसे ना मिले तो सब खत्म हो जाएगा। आयशा का दिल तड़प उठा। मैं क्या कर सकती हूं? अरहम ने पहले इनकार किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात घुमाकर कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो शायद मेरी जिंदगी बच जाए। आयशा खामोश हो गई। इसके पास अपनी कमाई नहीं थी, मगर कुछ जेवर थे जो इसकी मां ने इसके लिए रखे थे। दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ मां की नसीहत, दूसरी तरफ मोहब्बत का दावा। अरहम ने मजीद जज्बाती बातें शुरू कर दी, अगर तुमने साथ ना दिया तो शायद मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये जुमले आयशा के दिल पर बोझ बन गए। अगले दिन इसने खामोशी से अपने जेवर बेच दिए। जब उसने पैसे अरहम को भेजे तो वो बहुत खुश हुआ। इसने वादे किए, कस्में खाएं और कहा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। चंद दिन तक सब ठीक रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अरहम बदलने लगा। कॉल्स कम हो गईं, मैसेजेस देर से आने लगे, बातों में पहले जैसी गर्मी ना रही। आयशा इंतजार करती रहती, ऑनलाइन स्टेटस देखती और खुद को तसल्ली देती, वो मसरूफ होगा, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मगर एक दिन इसने देखा कि अरहम ऑनलाइन है, मगर उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। दिल में अजीब सा दर्द उठा। इसने हिम्मत करके कॉल की, मगर कॉल रिजेक्ट हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इस रात इसने अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो मुझे सच दिखा दे। और शायद यही वो लम्हा था जब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में दाखिल होने लगी थी। जब दिल सच मानने से इनकार करे तो जिंदगी खुद ऐसे सबूत सामने लाती है जिनसे नजरें चुराना मुमकिन नहीं रहता। आयशा की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगी थीं। मोबाइल इसके हाथ में होता, आंखें स्क्रीन पर, और दिल में हजार सवाल। अरहम पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो हर लम्हा इसके साथ होता, अब घंटों गायब रहता, और जब बात करता तो जल्दी में, सर्द लहजे में। आयशा ने खुद को बार बार समझाया, वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मगर दिल को कैसे झुटलाया जा सकता है। एक दोपहर जब आयशा अपने कमरे में बैठी थी, इसकी दोस्त ज़ारा का मैसेज आया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आयशा का दिल धड़क उठा। ज़ारा ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक तस्वीर जिसमें अरहम एक लड़की के साथ खड़ा मुस्करा रहा था, और कैप्शन में वही जुमले लिखे थे जो वो आयशा से कहता था, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। आयशा के हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। ये झूठ है, इसने खुद से कहा, मगर दिल मानने को तैयार ना था। इसने फौरन अरहम को मैसेज किया, ये लड़की कौन है? चंद लम्हे, फिर मिनट, फिर घंटे, कोई जवाब नहीं। आखिरकार रात को इसका मैसेज आया, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आयशा ने कांपते हाथों से जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। अरहम गुस्से में आ गया, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो हम यहां ही खत्म करते हैं। ये पढ़कर आयशा के आंसू रुक ना सके, वो टूट गई। नहीं प्लीज, मैं बस पूछ रही थी, मैं तुम पर यकीन करती हूं। अरहम ने फौरन अपना लहजा नरम कर लिया। जज्बाती बातें, दुख भरी कहानियां और खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश। आयशा फिर खामोश हो गई, मगर इस बार दिल मुकम्मल मुतमईन ना था। इस रात वो सो ना सकी। इसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर वो सच्चा है तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। अगले दिन आयशा ने खामोशी से अरहम की प्रोफाइल मजीद खंगाली। पुरानी पोस्टर्स, मुख्तलिफ लड़कियों के कमेंट्स और अजीब सी बातें। दिल में एक दर्द सा उठा, जैसे कोई हकीकत आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटा रही हो, मगर वो अभी भी उम्मीद छोड़ने को तैयार ना थी। वो सोचती रही, शायद सब गलत फहमी है, शायद वो मुझे खोना नहीं चाहता। मगर इसे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ आगाज था, और अगला कदम इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंकिशाफ बनने वाला था। सच देर से सामने आए, मगर जब आता है
तो इंसान को अंदर से हिलाकर रख देता है। आयशा कई रातों से सो नहीं पा रही थी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। वो अरहम से पहले जैसी बात करने की कोशिश करती, मगर अब उसकी बातों में वो गर्मी, वो अपनायत, वो सच्चाई महसूस नहीं होती थी। एक दिन आयशा ने फैसला किया कि वो अब सच जानकर ही रहेगी। इसने ज़ारा से मदद मांगी। ज़ारा ने कहा, अगर तुम वाकई सच जानना चाहती हो तो दिल मजबूत रखना, क्योंकि जो सामने आएगा वो आसान नहीं होगा। चंद दिनों की तहकीक के बाद ज़ारा ने आयशा को एक लिंक भेजा। वो एक सोशल मीडिया प्रोफाइल था जिसमें अरहम एक और नाम से मौजूद था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने प्रोफाइल खोला और उसकी दुनिया रुक गई। वहां कई लड़कियों के साथ तस्वीर थीं, वही जुमले, वही वादे, वही मोहब्बत के दावे जो वो आयशा से करता था। एक पोस्ट में एक लड़की ने लिखा था, तुमने मुझसे भी पैसे लेकर धोखा दिया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आयशा के हाथ से मोबाइल गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसे लगा जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो देर तक खामोश बैठी रही। न आंसू निकल रहे थे, न आवाज। फिर अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। आ अल्लाह, मैंने किस पर यकीन कर लिया। इसने फौरन अरहम को कॉल की। अरहम ने पहले कॉल रिजेक्ट की, फिर कुछ देर बाद कॉल उठाई। आयशा की आवाज कांप रही थी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुमने मेरे साथ किया। चंद लम्हों की खामोशी, फिर अरहम हंसने लगा। तुम जैसी लड़कियां बहुत आसान होती हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़े से वादे और सब कुछ दे देती हैं। ये अल्फाज आयशा के दिल को चीर गए। इसने फोन बंद कर दिया। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसे लगा जैसे इसकी दुनिया खत्म हो गई है। मगर इसी दर्द में इसने पहली बार एक अजीब सा सुकून भी महसूस किया, क्योंकि अब सच सामने आ चुका था। इसने सजदा किया और कहा, आ अल्लाह, शुक्रिया कि तूने मुझे सच दिखा दिया, इससे पहले कि मैं मुकम्मल तबाह हो जाती। इसी लम्हे आयशा की जिंदगी का एक बाब बंद हो गया। मगर इसे अभी अंदाजा नहीं था कि इस धोखे का अंजाम सिर्फ दिल टूटना नहीं, बल्कि एक ऐसी सजा भी थी जो जल्द सामने आने वाली थी। जो इंसान दूसरों के जज्बात के साथ खेलता है, वो एक दिन अपने किए का हिसाब भुगतता है। आयशा अब मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी। इसके दिल में सदमे के बावजूद अल्लाह पर ईमान मजबूत था। इसने अपने जज्बात को काबू में रखा और फैसला किया कि वो अब किसी के धोखे में नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद आयशा को खबर मिली कि अरहम गिरफ्तार हो गया है। ये कोई मामूली गिरफ्तार नहीं थी, बल्कि फराड और धोखाधड़ी के केस में वो लड़कियां जो पहले अरहम की मोहब्बत के बहाने पैसे और चीजें दे चुकी थीं, सब ने गवाही दी। अरहम के झूठ और धोखे की हकीकत अब सबके सामने थी। आयशा का दिल सुकून से भर गया। अगरचे इसने दुख भरा तजर्बा झेला, मगर अल्लाह ने इसे बचा लिया था। इसने खुद से कहा, सच हमेशा जीतता है, धोखा देने वाले की देर से सही मगर सजा मिलती है। आयशा ने अपनी जिंदगी की गलतियों से सबक लिया। वो जान गई कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज और दावों की चीज नहीं, बल्कि सच्चा रिश्ता वो है जो ईमान, एतमाद और इज्जत के साथ जवा हो। इस दौरान अरहम का मामला अदालत में आया। तमाम झूठ और धोखे सामने आए और अरहम को सजा सुनाई गई। वही इंसान जिसने कई दिल तोड़े अब अपनी गलतियों का सामना कर रहा था। आयशा ने अपने दिल में एक अज़्म किया, मैं दोबारा किसी पर अंधा एतमाद नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी और अल्लाह पर भरोसा मेरी ताकत होगी। इसने दुआ की, आ अल्लाह, मुझे आइंदा हमेशा सच और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जिंदगी के सबसे बड़े सबक कभी आसान तरीके से नहीं आते, वो दर्द, धोखा और सब्र के रास्ते से गुजरते हैं। अरहम की हकीकत सामने आने और उसकी सजा के बाद आयशा की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। इसने अपने दिल के जख्मों को वक्त के साथ संभाला। वो रोती रहती, मगर अब उसके आंसू हिकमत और सबक के थे, न कि सिर्फ दुख के। आयशा ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। इसने माँ बाप के करीब वक्त गुजारना शुरू किया और सबसे बढ़कर अल्लाह की इबादत और जिक्र में दिल लगाने लगी। इसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असल सुकून दुनियावी मोहब्बत धोखे में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। दोस्त ज़ारा के साथ बैठकर वो अक्सर कहती, हम सबको मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, मगर जो सच पर कायम रहे, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
आयशा ने अपने तजर्बे को दूसरों के लिए सबक बनाने का फैसला किया। वो अब अपने तजर्बे को लोगों के साथ शेयर करती ताकि वो भी सच और झूठ में फर्क कर सकें। इसने दिल में अहद किया, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगी, किसी के झूठ पर कभी यकीन नहीं करेगी और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करेगी। और सबसे बड़ा सबक जो इसने सीखा, सच्ची मोहब्बत वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए, ना कि गुमराही में डाले। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ दिल बहला दे, बल्कि वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए, दिल को सुकून दे और अक्ल के साथ साथ ईमान भी मजबूत करे। दुनिया के धोखे वक्ती है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। कभी भी किसी के वादों आ चमकती चीजों पर अंधा यकीन ना करो। सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा तुम्हें हमेशा बचाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर नई सबक आमोज और इमोशनल कहानी फौरन देखें। हमारी स्टोरीज से न सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ेगी, बल्कि आपको जिंदगी के अहम सबक भी मिलेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।